आज हम लोग बात करने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन इंडिया। So, unemployment is a situation where people are willing and able to do a job or work as per their economic requirement and qualification, but they could not be able to get it. So, population growth and employment growth किसी भी देश की बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। सो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया आर फेसिंग मेजर प्रॉब्लम्स, जिसमें कि एक अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस भी शामिल है। अगर हम लोग बात करें तो देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ जॉब्स इन इंडिया and youth population is growing day by day. So there are when youth population is growing day by day, so there is increased demand for jobs and less supply. So this will generate an unemployment, and the rate of generation of unemployment is very fast at the compound rate or as compound growth. So there are certain factors or certain situations that are related to this unemployment crisis. So there is, we can say, it is a persistent problem that has various social, economic consequences, including poverty, crime, and inequality. तो जो लोग इस अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस से सफर कर रहे हैं, दे हैव टू फेस वेरियस प्रॉब्लम्स दैट कैन बी साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड मेंटल। सो sometimes it leads to mental harassment and depression, social abuse, for to choose and accept the wrong way of getting money in the form of crime, लाइक लूटपाट होती है, वायलेंस, समटाइम्स hazardous result came in the form of suicide commitment by people due to being unemployed. तो इसमें एक फ्रेज है जो कि ये कहता है कि a man is unemployed only when he is both without job or without work or not employed and also desire to be employed. So हम लोग ये कहते हैं कि there are increased risk and uncertainty in agriculture, cultural and industrial sector in India leads to unemployment crisis. So अब हम लोग बात करते हैं कि a person which is engaged in any economic activity is called employed person. So while person who seeks work or job but not getting a job or work according to their qualification and or requirement is an unemployed person. But a person who is engaged in any economic activity, not only job or a salary based or a wage based work, but it can be in the form of self employment or business. So अब हम लोग बात करते हैं causes of unemployment in India. तो backwardness and monsoon based agriculture in some regions and not getting reasonable price for agriculture produces. तो जो फार्मर्स हैं उन्हें रीजनेबल प्राइस नहीं मिल पाता एंड कई बार मॉनसून सीजन में ज़्यादा बारिश होने की वजह से फसल तबाह हो जाना, बहुत सारे रीजंस हैं। दूसरा बैकवर्डनेस, इंडिया अभी बैकवर्ड सिचुएशन में है। तो सेकंड इज इनसफिशिएंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। अभी इंडिया
में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उस लेवल पर नहीं हुआ। थर्ड इज एम्फेसिस ऑन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। फोर्थ इज माइग्रेशन ऑफ लेबर फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। तो माइग्रेशन हो जाता करती है लेबर रूरल एरिया से ग्रामीण इलाके से शहरी इलाके में। दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज प्राइवेट एंटरप्राइजेस की तरफ ज्यादा होना, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हाई होना, डिफेक्टिव एंड लेस प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम। So the education system is not skill based or less practical. Slow growth of Indian economy, lack of transparency in recruitment process, defective and less practical education system is already discussed. So gender-based discrimination and unequal access to opportunities, limited availability of formal sector jobs in rural areas. अब हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो पहला होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें क्या होता है कि मिसमैच ऑफ स्किल्स की वजह से होता है। जो वर्कर्स के पास स्किल्स हैं एंड स्किल्स दैट एम्प्लॉयर रिक्वायर। ये तब होता है जब या तो बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो जाता है, एडवांसमेंट इन टेक की वजह से हो सकता है, या फिर पुअर एजुकेशनल स्ट्रक्चर की वजह से दैट स्टूडेंट्स लैक स्किल्स। तो जो कंपनी को स्किल्स रिक्वायर्ड हैं या जो उस वर्क के लिए स्किल रिक्वायर्ड हैं वो वर्कर और एम्प्लॉय के पास ना होना। देन आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये तब होता है जब वर्कर्स या एम्प्लॉयज नई जॉब ढूंढने में जो समय लगता है, सच एज अ पर्सन इज सीकिंग अ जॉब एंड फॉर सीकिंग अ जॉब ही required 2 months of time, but it takes 8 months of time. So time gap is more. So this create a temporary form of unemployment. So it is sometimes thought as a natural part of job seeking process, but it is a temporary frictional unemployment. नाउ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये तब होता है जब बिजनेस साइकिल में चेंज आना या इकोनॉमिकल रिसेशन आ जाता है, इकोनॉमिक डाउनटर्न आ जाता है। तब क्या होता है कि जो गुड्स और टैक्सेस हैं, जो गुड्स और सर्विसेज हैं सॉरी, उनकी डिमांड कम हो जाती है और उससे जॉब खतरे में आ जाती है। देन आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये तब आता है जब सीजनल चेंजेस की वजह से डिमांड फॉर लेबर कम हो जाती है। तो ये ज्यादातर होता है एग्रीकल्चरल, टूरिज्म एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में, जब डिमांड ऑफ लेबर वेरीज थ्रूआउट द ईयर। नाउ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल्स विलिंग एंड एबल to work are not actively seeking employment and not included in official unemployment statistics। मतलब ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट डेटा में इंक्लूड नहीं है। तो ये इसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये होता है, जैसे लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल बैरियर्स। देन आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कोई पर्सन ऐसी जगह वर्क कर रहा है, ऐसी जगह जॉब कर रहा है जहां fully that company or that institution do not fully utilize their skills and qualifications. So or working part time when they would prefer full time employment. So working in low paying jobs कह सकते हैं, despite having increased level of education, experience and qualification। हम लोग बात करने वाले हैं जो डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का इंडिया में।
So according to latest data available from National Statistical Office (NSO), unemployment rate in India was 6.1% in 2018-19, and current India's overall unemployment rate is 5.1% in August 2025, according to Ministry of Statistics and Program Implementation (MOSPI), a survey done by Periodic Labor Force Survey (PLFS). So, according to World Bank, it is 4.2% in 2024. Now we discuss about government initiatives and policy measures. So, first one is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, that is MNREGA. So, it is by Government of India in 2005. The aim is to improve living standard of rural poor, मतलब ग्रामीण इलाके के गरीब इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना एंड सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो इसमें क्या होता था कि एक एडल्ट मेंबर, हर हाउस होल्ड में से एक एडल्ट मेंबर को एटलीस्ट 100 डेज ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा जाता था, अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर विदाउट एनी स्किल। फिर आता है रीजनल रूरल बैंक RRBS, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1975 में। इसका विजन था कि रूरल इकोनॉमी को डेवलप करना एंड क्रिएट करना सप्लीमेंट्री चैनल टू कोऑपरेटिव क्रिएटेड क्रेडिट स्ट्रक्चर। नाउ इज थर्ड वन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसे हम MSME बोलते हैं। तो इसे माना जाता है इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका की रोल ये प्ले करता है इन जनरेटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये प्रमोट करता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो MSME एक्ट 2006 फैसिलिटेट्स डेवलपमेंट ऑफ बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। अब आता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन प्रोग्राम, जिसका एम है डेवलप करना स्किल टू 5,000 मिलियन पीपल बाय 2022। ये इसका एम था। तो ये एक नेशनल मल्टी स्किल प्रोग्राम है, जिसे हम लोग स्किल इंडिया भी कहते हैं, जो कि फोकस करता है मेनली एंटरप्रेन्योरियल स्किल डेवलपमेंट पे। फिर आता है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जो कि 1997 में लॉन्च हुई थी फॉर अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। मतलब शहर में जो पॉवर्टी है, जो टारगेट पॉपुलेशन होती थी, उसमें ये होता था कि शहर में रहने वाले जो BPL के हैं, बेलो पॉवर्टी लाइन के हैं, उनको पॉवर्टी से निकालना। तो उनको प्रोवाइड करा जाता था एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू अर्बन अनएम्प्लॉयड पीपल थ्रू सेटिंग अप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स एंड प्रोविजन ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। तो बात करने वाले हैं सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन फॉर दिस अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन इंडिया इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन can teach students practical skills that will prepare them to be self-employed instead of seeking for paid jobs. And government should reduce interest rates so that more people can start and do their business, and to promote small scale enterprises and grant entrepreneurs टैक्स एग्जेम्पशन। देन हम लोग कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को स्मॉल स्केल बिजनेसेस को प्रमोट करना चाहिए। एक ऐसा एजुकेशनल स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन करना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स में प्रैक्टिकल स्किल ज़्यादा आए और वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी जा सके।
देन हम लोग कह सकते हैं कि गवर्नमेंट शुड इंक्रीज देयर स्पेंडिंग and decreases taxes to create a favorable business economic uh, and job oriented market environment to reduce unemployment. फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग को इंडिया के अंदर एक वर्किंग यूनिट की तरह कंसिडर करना चाहिए जिसमें सैलरी इज नेसेसरी टू कीप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी इन गुड शेप. So and people also don't only depend on a salary or a wage based work, uh, or we can say a salary based employee or a job. They can work as an artist, as a scientist, as an athlete, a child care person at home, at a school, a teacher, an actor, anything. So work should be a question of imagination and creativity, not only salary based job. So thank you.